फिजिकल मेथड्स में फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के में हमने थोड़ी सी उसकी पढ़ा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दैट फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हेन वी परफॉर्म इट। इसमें प्रोडक्शन ऑफ अनपेस्चराइज्ड बियर, वाइन क्लैरिफिकेशन, and we discussed that we can use the filtration process for the sterilization of the heat sensitive chemicals। और फिर यहीं पे बात की कि फिल्टर पेपर का पोर साइज कितना होना चाहिए, फिर डेप्थ फिल्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि डेप्थ फिल्टर्स जो हैं दे आर द चार्ज फिल्टर्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कौन सा चार्ज होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास filters हैं they would be charged with a positive charge, and then organisms containing negative charge, they would pass through that filter paper, they would bind with the positive charge, and इस तरह से हमारे पास जो है filtrate clear of microorganisms नीचे आएगा। इसी तरह से HEPA filters हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, और इनका जो पोर्ट साइज हमने डिस्कस किया और ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं ये भी हमने बात की। So next, today we are extending this topic, that is actually the physical methods to control the microorganisms, and we discussed heating procedures। और heating के अंदर हमने देखा है कि moist heat, dry heat, फिर filtration। अब आगे जो है this is the radiation, and radiation की हमने कभी बात की थी पहले भी, irradiation का मैंने एक word use किया था, the exposure to the rays and the radiations। You know that radiations may be of varying wavelength। different rays की wavelength differ कर सकती है। For example, if we talk about the light spectrum, and there is a visible range, और इसमें visible range से below हमारे पास UV range है, उससे above infrared range है। तो जो visible range है that varies from 600 to 730 nanometer maybe, and जो UV है that varies from 200 to 320 या 300 nanometers। जितनी wavelength short होगी, it means that उतनी frequency high होगी। Physics, if the wavelength is shorter, the frequency would be higher, और frequency अगर ज़्यादा है, that means that that waves should contain or would contain more energy if the frequency is higher। So हम rays को दो categories में divide कर सकते हैं, one are the ionizing and number two they are non-ionizing radiations। जो ionizing rays हैं, इनमें example के तौर पे हम gamma rays की बात करेंगे, how they kill the microorganisms, what is their mode of action। तो उसमें सबसे पहले जो gamma rays हैं प्रोड्यूस कैसे होती हैं, gamma rays are being produced from the decaying radioisotopes, और इसमें x-rays या इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर्स अपना रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ gamma rays। मोड ऑफ एक्शन क्या है, gamma rays जो है when the organisms will be exposed to the gamma rays, these gamma rays will produce the superoxides and hydroxyl free radicals, and these superoxide and hydroxyl free radicals that have ability to destroy the DNA, and along with the DNA they will damage the cytoplasmic membrane, और इस तरह से organisms जो हैं they will die। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि in many control methods we consider that gram negative bacteria are more resistant, लेकिन ग्राम इस केस में आयनाइजिंग रेज के केस में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर मोर ससेप्टेबल टू द गामा रेज। यहाँ पे भी क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि व्हाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टेबल टू गामा रेज, रिजवान, व्हाई gram negative bacteria are more susceptible to gamma rays। यहाँ पे लिखा हुआ है this one, they are more susceptible to gram negative, are more susceptible। What do you think, what could be the reason behind it? चलो इसमें सोचो फिर बात करेंगे। and जो ionizing rays हैं they are unable to kill the endospores and endosperms because they are resistant to the ionizing rays। और इसके अलावा ionizing rays का जो हमारे पास या gamma rays का जो हमारे पास एप्लीकेशन है that can be used to treat the heat sensitive material। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि पहले हमने डिस्कस किया कि heat sensitive materials को ट्रीट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं, but filtration can only be used for the liquid materials। if the material is not liquid but it is heat sensitive, then in that case gamma rays will be effective to control the microbial growth on it। इसके अलावा there are many FDA guidelines which are which made it restrict to use the radiations or radiation dose, और इसके accordingly edibles के लिए हमारे पास FDA क्या है जी,
FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटी, डोंट कुछ सुना कभी इसका नाम आप लोगों ने कभी? FDA भाई इस तरह मत किया करें, FDA बड़ी मशहूर मारूफ किस्म की। पहले मुझे जरा FDA पे रोशनी डाल लेना था, फिर हम आगे चलते हैं। लुक एट दिस FDA, Food and Drug Administration. This is US based and that has its control on the Food and Drugs Administrations, और इसमें इसकी सर्टेन गाइडलाइंस हैं कि कोई भी केमिकल्स है या कोई भी फूड ट्रीटमेंट ड्रग ट्रीटमेंट है उसको आपने किस हद तक करना, कितनी डोजेज यूज़ करनी है, कितने टाइम के लिए एक्सपोज करना है। जो भी ड्रग मार्केट में आती है खासतौर पर US बेस्ड, उसको FDA से अप्रूवल ज़रूरी हुआ करता है। ठीक है, अब हमारे पास पाकिस्तान में इस तरह की कोई एजेंसी मौजूद है, डू यू नो दैट, which has its control on food and drug related issues? Yes, we have in the Pakistan, that is called DRAP, Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP, DRAP, ठीक है, DRAP। तो इस तरह की जो बातें हैं हम इसमें एक्सप्लेन करने में कुछ नहीं हुआ करता ना। सो FDA की गाइडलाइंस हैं हमारे पास अकॉर्डिंगली रेडिएशन को कितना एक्सपोज करना है, बिकॉज इन सम केसेस दे मे डिटेरियोरेट द फूड्स। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द FDA guidelines we can use the gamma rays to treat the trichinia parasite, that is the common parasite for the fruits and vegetables that can be killed with the gamma rays। इसके अलावा Salmonella species and E. coli strain 0157 that has ability to produce the toxins in the pork। इसके अलावा other meats including poultry, beef, lamb meat। तो जब हम पोर्क क्या होता है, पोर्क यस पिग मीट, पोर्क मीट, इसके अलावा पोल्ट्री, बीफ, लैम्ब। तो इन मीट्स की ट्रीटमेंट के लिए भी गामा रेज इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सैल्मोनेला एंड द इकोलाई स्ट्रेन 0157। ठीक है, इसके अलावा अगर रेडिएशंस को हम मजीद एक्सटेंड करें along with the gamma rays there are the UV rays, और UV rays में हमारे पास जो मैंने रेंज बताई 220 to 300 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ हुआ करती है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि यूवी रेज हैं ये डीएनए को डैमेज करती हैं, जिसके रिजल्ट में ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। बेसिकली जो यूवी रेज हैं दे फॉर्म द थायमीन डाइमर्स। थायमीन डाइमर्स क्या होते हैं जी, मॉलिक्यूलर पढ़ ली, थायमीन डाइमर्स एफएससी में पढ़ा होगा आप लोगों ने किसी जमाने में। थायमीन डाइमर्स बेसिकली इफ देयर आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए 1 and 2, तो आपको पता है इसमें थायमीन, adenine, guanine, cytosine kind of। तो when the DNA would be exposed with the UV light, तो ये जो thiamine है this would form a dimer like this। Basically तो thiamine ने complementary strand के साथ bonding करनी होती है, but this would form thiamine dimers and DNA damage होगा तो microorganisms की death होगी। And but keep in mind UV light is unable to kill the endospores because endospores are resistant to the UV light। UV लाइट की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये है कि UV लाइट की पुअर पेनिट्रेशन है, ये डीप इनटू द फूड पेनिट्रेट नहीं करती। पुअर पेनिट्रेशन की वजह से इसके यूजेस जो हैं वो लिमिटेड हैं। इसके अलावा इसकी रेंज बड़ी शॉर्ट है। फॉर एग्जांपल हम इसको थ्रो नहीं कर सकते किसी भी एक स्पेसिफाइड एरिया पर, अगर इसको अप्लाई करना है तो इसकी तब ये अपनी एक्टिविटी शो कर सकेगा। और सबसे बड़ा नुकसान यूवी लाइट में दे प्रमोट द स्किन कैंसर, और स्किन कैंसर जो है उसकी रीजन यूवी लाइट की वजह से इसको डिस्करेज किया जाता है इसके यूज को। उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में वाया द माइक्रोवेव ओवन, और माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम फूड को हीट करते हैं नॉर्मली, but these microwaves have ability to kill the microorganisms but not directly। Keep in mind these microwaves they cannot kill the microorganisms directly but they can kill the microbes indirectly। वो किस तरह से, when we put the food items into the microwave, microwaves जो हैं ये फूड आइटम्स को हीट करती हैं और हीट जो है वो किल कर दी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डायरेक्टली माइक्रोवेव्स डू नॉट हैव एबिलिटी टू किल द माइक्रोब्स, तो बट स्टिल माइक्रोवेव ओवन्स को या माइक्रोवेव्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है कि दे डू नॉट इफेक्ट डायरेक्टली बिकॉज दे डू नॉट हैव एबिलिटी।
फिर पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कि whenever we talk about the autoclaving conditions were the 15 psi pressure 121 degree centigrade for 15 minutes. वहाँ पे मैंने बात की थी कि this 15 psi pressure that is unable to kill the microorganisms alone. This is the temperature that kills the microorganism. But here, that is another example. If we increase the pressure up to 130,000 psi तक temperature provide कर दें, तो sorry 130,000 psi तक pressure provide करें, at that high pressure, proteins of microorganisms that may denature, and if the proteins are denatured, it means that microorganism would die. So इसका मतलब है कि ऑटोक्लेविंग का जो माइन्यूट, इसके मुकाबले में ऑटोक्लेविंग के अंदर जो प्रेशर है दैट इज वेरी माइन्यूट 15 psi. But if we provide and if we want to use the pressure alone तो हमें प्रेशर देना पड़ेगा 130,000 psi तक और that can denature the proteins. बट इसमें मजे की एक बात यह है कि ये हाई प्रेशर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है. इसका बेनिफिट ये है कि हाई प्रेशर पे हमारे पास अगर किसी फूड को हम ट्रीट कर रहे हैं तो वो फूड के ना फ्लेवर को नुकसान देगा ना उसके कलर को नुकसान देगा. सो इफ यू वांट टू use the high pressure, that is favorable in case for the foods which are color sensitive and the taste or flavor sensitive. So that's why the high pressure जो है that is recommended for the foods in which you want to keep the color and the flavor intact. ठीक है? This is the usage of high pressure. So high pressure alone can be used, but at very high amount. जो हमारे पास ऑटोक्लेविंग का प्रेशर है दैट इज अनएबल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके जी, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई इशू तो नहीं है? If you guys have any issue, you can discuss that. So जो हमारे पास इस चैप्टर का एक पोर्शन है दैट इज द फिजिकल मेथड्स वी हैव कंप्लीटेड इट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पोर्शन दैट इज अबाउट द केमिकल मेथड्स. और केमिकल मेथड्स की अगर बात करें तो हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, blah blah blah. The chemicals which are there to sterile the instruments and to sterile the things, they would be termed as sterilants. सबसे पहले लिखा हुआ ठीक है sterilants. Sterilants they normally kill the vegetative cells, but if we increase their exposure to 6 to 8 hours, they have their ability to kill the endospores. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बॉइलिंग, शॉर्ट टर्म बॉइलिंग जो थी वो वेजिटेटिव सेल्स को किल कर देती थी, लेकिन हमें वेजिटेटिव सेल्स के अलावा जब एंडोस्पोर्स किल करने होते थे तो हमें प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती थी. सेम इज द केस विद द स्टेरिलेंट्स. दे कैन किल द एंडोस्पोर्स बट विद द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अप टू 6 to 8 hours. और नॉर्मली जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम स्टेरिलेंट्स यूज करते हैं दे आर द क्लोरीन डाइऑक्साइड. और जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुआ करते हैं हॉस्पिटल्स में खास तौर पे उनके लिए क्लोरीन डाइऑक्साइड इज इनफ to kill the endospores as well as to kill the vegetative cells. अब जितने भी केमिकल्स हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बेसिकली तीन कैटेगरीज में. वन आर टर्म्ड एज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स, नंबर टू द इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स एंड नंबर थ्री द लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स. हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स आर द डिसइंफेक्टेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू किल द क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स. खास तौर पे हाई लेवल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें शॉर्ट टाइम एक्सपोजर देना पड़ता है 30 मिनट्स के लिए. और हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह. ये तीन एग्जांपल बड़ी कॉमन है. और इसमें नॉर्मली तो नहीं किल हुआ करता एंडोस्पोर्स, बट इफ वी increase the exposure of these sterilant to the endospores, so endospores would also be killed. These are the high level disinfectant. आगे हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है कि फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इनके मोड ऑफ एक्शन क्या हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं. इसके बाद अगर हम केमिकल्स की दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स and they are used to treat the non-critical instruments, but they do not kill the endospores. Keep in mind, जो high level है, they can kill the endospores or at prolonged exposure, but the intermediate level they do not kill the endospores even they are at the prolonged exposure. The next one, that is low level disinfectants, they neither kill endospores nor naked viruses. दोनों को kill नहीं कर सकते. इसके example हमारे पास है quartz, quaternary ammonium compounds, quartz. इस पे भी हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि what is the mode of action for the quartz and how they act. इसके अलावा there are certain points और factors हैं कुछ जो कि स्टेरिलेंट्स की
एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले है डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मैटर्स. इफ द स्टिलेंट इज इन द डाइल्यूटेड फॉर्म इसकी एक्टिविटी जो है कंप्रोमाइज होगी, बट इफ द स्टिलेंट इज इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. सो डाइल्यूशन मैटर्स. इसके साथ साथ हमारे पास जो सेकंड चीज है वो है अमाउंट ऑफ टाइम. अभी हमने ऊपर पढ़ा है the vegetative cells they can be killed by the stimulants, but if we want to kill the endospores we have to increase the exposure time. तो जो amount of time है it varies and it affects the activity of the stimulant. फिर जो दूसरी चीज आती है this is the temperature. हमने इसकी एक एग्जांपल पढ़ी हुई है पिछली क्लास में, सोडियम हाइपोक्लोराइड वाली. क्या एग्जांपल थी, किसी के ज़हन में है जी? थोड़ा ऊंची. नहीं. और इसके टेम्परेचर का भी डिफरेंस था सर. 50 सेकंड से लेके ये 160 सेकंड पे 50 डिग्री टेम्परेचर की और हाँ बोलना सही कह रहे हैं आप. और 50 सेकंड्स पे 55 डिग्री ना हमने पढ़ा था कि सोडियम hypochlorite can be used to treat the organisms and it can kill the microbes in 150 seconds at 50 degrees centigrade. But if we increase the temperature up to 55 degrees centigrade, it would take only 60 seconds. That's it. तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर जो है that may affect the ability or the activity of the stillant. कितने टाइम के लिए इसको एक्सपोजर देना है. So this is an example कि किस तरह से एक हमारे पास जो टेम्परेचर स्टिमुलेंट सेम है, हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसको उसकी एक्टिविटी चेक की एंड देन वी फाउंड दैट टेम्परेचर कैन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द स्टिमुलेंट. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये बेहतर एक्टिविटी शो करेगा, बट एक लिमिट तक. अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्टिमुलेंट की एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव वे में भी इफेक्ट हो सकती है. गॉट इट? अच्छा जी. इसके अलावा now we have different points that should be considered before selecting the chemical. मैंने कुछ chemicals के नाम लिए हैं: formaldehyde, butyraldehyde, hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, ethylene oxide, bigonides, ये भी आगे आएंगे मज़ीद. तो सवाल ये है कि कौन सा केमिकल कब चूज करना है. What is the criteria to choose the chemical? आप ये नहीं कर सकते कि आप एडिबल्स को ट्रीट कर रहे हैं और आप उसको थायरोन ऑक्साइड के साथ हैंडल कर रहे हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हैंडल करें. So it means that you have to be very careful when you are selecting the antimicrobial chemical to treat the things. अच्छा, अब उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं. इसमें सबसे पहले आते हैं टॉक्सिसिटी. वी हैव टू कीप एन आई ऑन द टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल. केमिकल ऐसा ना हो कि it is toxic to the apparatus that we are going to treat, to the fruits and vegetables or any other thing that we are going to treat. It should not be toxic to our main apparatus or anything that we want to treat. So chemical toxic ना हो. दूसरा, activity in the presence of organic matter. Chemical should be able to perform its proper activity in the presence of organic matter. हमने पढ़ा था इसमें स्टार्ट में कि अगर हमारे पास कोई बैटरी प्लेट है, उसके ऊपर कोई ग्रीस टाइप लगा हुआ है, and if there is a high number of microorganisms on the battery plate, तो हमारे पास जो कंट्रोल मेथड है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है. तो इस वजह से ऑर्गेनिक मैटर, जिस तरह डोमेस्टिक वेस्ट है, जो घरों का वेस्ट जो जाता है डोमेस्टिक वेस्ट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हुआ करता है. तो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में बहुत सारे हमारे पास ऐसे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं जो कि अपना इफेक्ट प्रॉपर शो नहीं करते. तो वी शुड सेलेक्ट द एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड दैट हैज एबिलिटी to affect or act properly in the presence of organic matter. और उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है हाइपोक्लोराइड की, फिनोलिक्स की. तो इसको कंपेयर करेंगे, एक टेबल छोटा सा शो करवाऊंगा जिसमें हम इसको कंपेयर करेंगे कि व्हेन वी यूज द फिनोलिक्स एंड व्हेन वी प्रेफर द हाइपोक्लोराइड. इसके अलावा कंपैटिबिलिटी, जो मटेरियल जिस मटेरियल पे हमने यूज करना है उसके साथ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, but if you are treating the plastic material you cannot use the chloroform because chloroform will dissolve the plastic. प्लास्टिक इसमें आपने कोई प्लास्टिक की किसी ट्यूब को करना है स्टेराइल क्लोरोफॉर्म से करें तो ट्यूब उसमें डिसॉल्व हो जाएगी. सो
the antimicrobial compound that should be compatible with the material that is being treated. और इसके अलावा रेजिड्यू, हमें रेजिड्यू के बारे में बड़ा केयरफुल होना है. The antimicrobial compound should not leave the residue behind. बैटरी प्लेट पे आपने काम करना था, बैटरी प्लेट को किसी ऐसे केमिकल से ट्रीट करवा लिया, वो केमिकल रिमूव करने के बाद अपने रेजिड्यू उसमें छोड़ गया, whenever you pour the media into the बैटरी प्लेट, तो वो रेजिड्यू जो है वो आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करेंगे. So keep in mind we should not use such kind of chemicals that may leave the residue. Cost and availability. The antimicrobial compound that you are going to select, that should be cost effective and that should be available in the market easily. ऐसा ना हो कि आपने इसको select कर लिया और वो कुछ टाइम के बाद market से available ना हो. If the availability affect, ultimately cost जो है वो increase हुआ करती है. So cost effective होना चाहिए और availability इसकी जो है वो market में 100% surety के साथ. And the second last point, that is storage and stability. The antimicrobial compound that you are going to select, that should be stable at the storage conditions. मिसाल के तौर पे हमने मार्केट से इसको परचेज किया है, we have stored it in the lab. ये ना हो कि स्टोरेज कंडीशन में वो डिटेरियोरेट कर जाए, वो evaporate कर जाए, इतना volatile हो और बाद में जब हम उसको खोलें तो हमें इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी मिले. So storage easy होना चाहिए. You can store it on the room temperature. If the antimicrobial compound is too sensitive and you have to store it in the refrigeration temperature, that will increase its cost. और इसकी stability जो है, that would also be antimicrobial compound would also be stable. So the environmental risk, ऐसा केमिकल को इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि environmental pollution cause करने का बाइस बने. Because you know that environmental protection agencies जो हैं, we human have deteriorated the environment and हम इसको मज़ीद avoid deteriorate करने से avoid करना है. So that's why we have to select carefully, keeping in view all these points, that what we want to select on what basis and what is the maximum benefit to us in the selection of these antimicrobial compounds, keeping in view the factors that we have discussed here. ठीक है? So this is the selection of appropriate germicidal chemical, और ये हमारे पास कुछ chemicals थे जिनके बेस पे हम इसको करेंगे select. अभी कुछ क्लासेस की बात करते हैं. अगर हम इन केमिकल्स को, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? अगर हम एंटीमाइक्रोबियल या जर्मिसाइडल केमिकल्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करें तो इन क्लासेस में हमारे पास अल्कोहल्स सबसे पहली क्लास, और अल्कोहल में हमारे पास एथेनॉल, मेथनॉल, methylated spirit, they are very common in the routine life. और इसमें जो अल्कोहल्स की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिक्वायर्ड 60 to 80%. आपको याद होगा कि हमने कभी बात की थी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल और 70% अल्कोहल, तो नॉर्मली वी यूज 70% अल्कोहल इन द सरफेस स्टेरिलाइजेशन. एंड मैंने वहां पे एक रीजन भी बताई थी कि व्हाई वी यूज टू प्रेफर द 70% अल्कोहल एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट अल्कोहल. किसी को याद है? Okay, so anyone from the online audience, do you guys remember what is the reason to use the 70% ethanol instead of absolute alcohol? Okay, no one from the online audience. Next class में जिसमें आप आएंगे, that would be on Tuesday. No, next Wednesday को जो आपकी क्लास होगी उसमें कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्विज होगा जी, ऑड रोल नंबर्स का. इस पूरे चैप्टर का तैयारी करके आइएगा. अच्छा जी, अल्कोहल्स की हम बात कर रहे हैं. 60 to 80% कंसंट्रेशन जो है रिक्वायर्ड है टू किल द वेजिटेटिव सेल्स, बट अल्कोहल्स दे डू नॉट रिलायबली किल द एंडोस्पोर्स एंड नेकेड वायरसेस. इसका जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज अ कोएगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर एसेंशियल प्रोटीन्स. प्रोटीन जो अल्कोहल है दैट कोएगुलेट्स द एंजाइम्स और एंड प्रोटीनेशियस कंटेंट ऑफ द सेल, और इस तरह से वेजिटेटिव सेल्स की डेथ करता है. Proteins are more soluble and denature more easily in alcohol mixed with water. So this is the reason that we use 70% alcohol for the sterilization purposes instead of 95. क्यों? Reason लिखिए third point पे. Proteins are more soluble and denature more easily in the alcohol that is mixed with the water. तो हमारे पास 95% alcohol हुआ करती है
हम इस 95 को कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, और एब्सोल्यूट अल्कोहल से हम बनाते हैं 70% अल्कोहल, और हम इस 70% को यूज करते हैं। इस 70% अल्कोहल में होती है अल्कोहल प्लस वाटर, so this is more effective as compared to 95% alcohol. Thus alcohols have advantage that they are non-toxic and they are inexpensive and they do not leave a residue, but they evaporate quickly. जो जल्दी से evaporate होते हैं जिसकी वजह से they do not leave the residue, लेकिन ये भी हमारे पास side effect है कि they evaporate very quickly, और they are non-toxic normally and they are inexpensive, so they are encouraged to use. They may damage some materials such as rubber and plastics. ये हमारे पास इसकी लिमिटेशन है कि रबर्स और प्लास्टिक अगर इसको यूज करेंगे तो इट में डैमेज इट। और इसके अलावा कुछ हमारे पास टिंक्चर्स आते हैं मार्केट के अंदर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। These tinctures are the antimicrobial chemicals which are dissolved in the alcohols. For example, if the iodine that is dissolved in the alcohol, that would be termed as iodine tincture, और ये मार्केट के अंदर मिलता है। इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म मिलती है पायोडीन की फॉर्म में, एंड वी यूज इट। उसमें कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। So this was about the alcohols and it has some limitations, advantages, and उसमें हमने थोड़ा सा इसके बारे में, इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट वन दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फैमिली के अंदर हमारे पास आते हैं ग्लूटरएल्डिहाइड, ऑर्थोथैलेल्डिहाइड और फॉर्मएल्डिहाइड। अच्छा, तीन कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड के अंदर, और मोड ऑफ एक्शन इसमें अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस को किल करते हैं बाय इनएक्टिवेटिंग द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ द वायरसेस एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो हमारे पास इसकी परसेंटेज है, द 2% सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन ग्लूटरएल्डिहाइड दैट इज इनफ to kill the microorganism on the heat sensitive medical instrument। और हम ये 2% ग्लूटरएल्डिहाइड का सोल्यूशन बना के रखा हुआ होता है, जो हीट सेंसिटिव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको 10 से 12 घंटे के लिए इसके अंदर डिप कर देते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल एक बीकर है इस तरह हमारे पास, वी हैव अ बीकर। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो एक बीकर है, इसके अंदर 2% ग्लूटरएल्डिहाइड का सोल्यूशन है, और इसके अंदर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, फॉर एग्जांपल दिस इज स्कैलेपल और एनीथिंग एल्स, इसको 10 से 12 घंटे के लिए डिप कर दें। दिस वुड बी इनफ टू किल द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज प्रेजेंट ऑन दैट स्कैलेपल। ओके, तो ये इसका हमारे पास कंसंट्रेशन जो इस्तेमाल होती है। और मजे की बात यह है कि जो एल्डिहाइड्स हैं इनका सिर्फ 10 मिनट्स का जो एक्सपोजर है दैट इज इनफ टू किल द वेजिटेटिव सेल्स बट नॉट द स्पोर्स एंड द वायरसेस। ऊपर मैंने लिखा है कि 10 से 12 घंटे के लिए डिप करें तो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ किल हो जाएंगे, लेकिन 10 मिनट के लिए करेंगे तो सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स जो है डाई होंगे। ग्लूटरएल्डिहाइड जो है दैट इज टॉक्सिक। जो भी इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर डिप किया है उसके ऊपर टॉक्सिक कंपाउंड लग चुका है ग्लूटरएल्डिहाइड, इसलिए हम उसको यूज करने से पहले रिंस करेंगे वाटर के साथ। ऑटोक्लेव स्टेराइल वाटर इस्तेमाल होता है रिंसिंग के लिए, ताकि ये ना हो ना कि वाटर भी आपने टैप वाटर यूज कर लिया तो ये ऑलरेडी इसको स्टेराइल था तो टैप वाटर के साथ फिर से वो कंटामिनेट हो गया। सो ऑटोक्लेव डिस्टिल्ड वाटर जो है हम यूज करेंगे इसको रिंस करने के लिए, क्योंकि ग्लूटरएल्डिहाइड जो है दैट इज टॉक्सिक। इसके अलावा ऑर्थोथैलेल्डिहाइड है दैट इज अल्टरनेटिव टू ग्लूटरएल्डिहाइड, और इसमें शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम है। अभी आपने ऊपर देखा है कि ग्लूटरएल्डिहाइड जो है ये 10 से 12 घंटे के लिए इसमें डिप करना पड़ता है, लेकिन जो ऑर्थोथैलेल्डिहाइड है दिस हैज द शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम and this is less irritating to eyes and nasal passages। ग्लूटरएल्डिहाइड जो है that is very irritating to the nasal passages and the eyes, आंखों से पानी निकलता है शदीद किस्म का if you are exposed to it। ठीक है, these were the aldehydes। और फिर एक हमारे पास एंड पे बचता है फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड जो है इसको गैस के तौर पे भी यूज करते हैं, और इसको एक्वस सोल्यूशन भी यूज करते हैं इसका, जिसको हम फॉर्मलिन कहते हैं। और फॉर्मलिन जो है दैट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मएल्डिहाइड, 37% एक्वस सोल्यूशन हुआ करता है। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस 37%, इसका क्या मतलब होगा, या 70% इसका क्या मतलब है? 70%, मैं इसको कहता हूँ जी 70% अल्कोहल का सोल्यूशन है। इट मींस दैट इफ यू हैव 100 ml टोटल वॉल्यूम, इसमें 70 ml अल्कोहल होगी और रिमेनिंग 30 ml जो है वो वाटर होगा। दिस वुड बी 70%। इसी तरह 2%, इसी तरह से 37% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड दैट वुड बी द फॉर्मलिन। इसको फॉर्मलिन कहते हैं। फॉर्मलिन के और भी बहुत सारे यूजेज हैं, ज़ूलॉजी वालों को तो खास तौर पर पता होना चाहिए। व्हेन यू वांट टू प्रिजर्व सम एनिमल्स, उसको फॉर्मलिन के अंदर डिप कर देते हैं, या ह्यूमन टिश्यूज को फॉर्मलिन में
तो इसके मल्टीपल हमारे पास एप्लीकेशन आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेलिन के ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं. This formalin or formaldehyde that is effective germicide and that can kill most forms of the microbial life within minutes. इसी वजह से लैब के अंदर कुछ अरसे के बाद हम फ्यूमिगेशन करते हैं फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड से, और वो फ्यूम्स क्रिएट होते हैं, लैब को बंद कर देते हैं, और लैब में एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसमें भी स्पोर्स, फंगल स्पोर्स, माइक्रोबियल स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स, एंड दे मे बी किल्ड विदिन मिनट्स. गॉट इट? दिस इज द एल्डिहाइड्स एंड इसके पीछे हमने अल्कोहल्स पढ़ा है. किसी को कोई यहाँ तक मसला हो कि बात समझ में ना आई हो, या कोई भी क्वेश्चन हो रेलेवेंट और इररेलेवेंट, यू गाइस मे आस्क. कोई सवाल नहीं है? चलें फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, तो फॉर्मेलिन जो है ये इसका यूजेज वायरसेस को इनएक्टिवेट करने के लिए है. यू नो दैट वैक्सीन्स क्या होती हैं? कोई बता सकता है व्हाट आर द वैक्सीन्स? डेड नहीं, crippled, and you can say that they are attenuated or inactivated. Vaccines are vaccines we use the inactivated or attenuated organisms which enter into the body and they activate the immune system. और फिर जब भी कोई हेल्दी वायरस उसी कैटेगरी का आगे एक्ट करता है तो इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड और इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्ट करता है. जो फॉर्मेलिन है ये इस्तेमाल होती है वायरसेस को इनएक्टिवेट करने में. फॉर एग्जांपल a virus was active, और अगर वो किसी इंडिविजुअल के साथ एक्सपोज होगा तो इंडिविजुअल में हैव एडवर्स इफेक्ट्स. बट इफ वी ट्रीट द वायरस विद द फॉर्मेलिन टू इनएक्टिवेट इट, an inactivated virus that may be used as a vaccine to induce the immune response. और इसमें हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक और मसला है कि ये इरिटेटिंग वेपर्स क्रिएट करता है. इट इज सस्पेक्टेड दैट इट कॉज कार्सिनो, it has carcinogenic effect. Carcinogenic cancer cause. Formaldehyde का एक्सपोजर या उसके जो इरिटेटिंग ड्रॉप्स हैं, वेपर्स हैं, आंखों को इतनी शदीद लगते हैं, you cannot imagine. Once I exposed to formaldehyde और it was very severe exposure. मुझे याद पड़ता है कि वो मैंने पहने हुए थे कोई 2 अच्छा जी, अगला है इसमें बिगनाइट्स. पढ़ा दूं ये भी या? ओके जी, अटेंडेंस. अबीहा बाबर, अबीहा बाबर, बच्चे अटेंडेंस बोलनी है. अच्छा 80. ओके ओके. Present sir. Present sir. See, this is the even week and you were supposed to come on. सर मैंने आपको ईमेल किया था सुबह के ना, मेरी मोटरसाइकिल की ना वो जो गियर बॉक्स से ब्रेक हो गया था. That's why मेरे पास कन्वेंस का इशू था, इसलिए मैं नहीं आ सका, वरना मैंने जरूर आना था सर. अच्छा चलें. अस्मा मोहम्मद मुमताज, अस्मा रज़ाक, आतिका इफ्तिखार, आयशा ताहिर, बिस्मा महबूब, बुशरा मुर्तजा, फारिया फरहान, Present. गुलनाज बीबी, हाफिजा जवेरिया अकबर, Present. Present. जन्नत सर मैं हारून, प्रेजेंट हूँ हाफिजा जवेरी. जन्नत हारून, Sir, Muhammad is present.
And Jannat is not here. Mahin Zahra. Yes, sir. Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah. Yes, sir. Present. Nabil Hamza. Rania Hafiz. Present. Rimsha Hamid Mahmood. Saad Naim Khan. Saman Rauf Rame. Present, sir. Sana Liaquat. Shadil Ali Khan. Sayyid Tahir Abbas. Tayyiba Kamar. Waqar Hussain. And Zaim Amjad. Zaim is not there. Okay, मेरे ज़हन में कभी अभी
दीजिएगा। अय्याज खान, अय्याज इज देयर। हफ्सा फिरदौस, जन्नत रानी, मिनाहिल बेग, नाजिश रियाज, Present, sir. मानुल्लाह, उम्मे रुबाब। मैंने कर दिए कल